Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon and Assalamu alaikum to all the participants. I appreciate your presence here. These are very testing times. Corona is widespread, and the good aspect of today's lecture is that this would be online, and a lot of people would be benefiting from this lecture and discussion by sitting safe in their respective homes and can watch the lecture online. I would like to appreciate and commend the efforts of Kanundan team and these initiatives back to back in an effort and in an attempt to improve and ameliorate the standards of criminal litigation, criminal advocacy in the courts. This is indeed a step in the right direction. I am, as some of you know, a criminal practitioner, and I am mostly, I do my work in the appellate courts. This is the High Courts of Pakistan and the Supreme Court of Pakistan. And today's lecture revolves around criminal appeals. The scope of lecture would cover appeal against convictions and appeal against acquittals. We will be talking about both of them. But at the very outset, let me clarify something for the young lawyers. 2 hours lecture or discussion is wholly inadequate to understand the dynamics and the intricacies involved in criminal appeals. This 2 hours lecture is by no way a substitute or replacement for proper mentorship, proper pupillage, which would give you a proper insight and would fully equip you with all the ups and downs which one experiences during his career. So I would strongly recommend and urge all the listeners today that they must try their utmost to secure pupillage, to secure a placement in a chamber which specializes in criminal appeals. This is of paramount importance for the reason that when you are arguing a criminal appeal, you are engaging the bench or the judges for longer duration. You're not arguing a small brief, or a brief which you are over and done with in 2 to 3 minutes. So your knowledge, your command, your grasp, your insight in the field of criminal law would be properly tested during appeals. So this is also a golden opportunity for the debutants and for the young lawyers to make their name and to establish their practice by demonstrating skills. So greater opportunity to interact with the judge, more time to stand at the podium, more time to speak, more time to remove your hesitations and inhibitions, and to engage the bench for longer duration. But of course, this comes at a price, and the price which you have to pay is that you must know the work. And the work, of course, is not only challenging, the work which is given to you has high stakes. So people come to appellate court lawyers with a lot of apprehensions, with a lot of insecurities, and they make it a point that they do not make another mistake because they are convinced. A person who approaches the High Court, whether his loved one or his relative, whoever is in trouble with law, whether he's involved or not, he doesn't care about it. He would only like to hold the lawyer responsible who has appeared in the lower court. That this result is because of lack of
hard work or lack of professionalism or whatever you may name it or label it, and he's looking for relief in the High Court from you. So it is very important that when you interact, मैं जो आज का लेक्चर है वो डायरेक्टली आई वुड नॉट लाइक टू टेक यू टू द कोर्ट. I would first of all give you an insight as to what happens when a client comes. Usually from experience, I have 20 years of experience of arguing criminal appeals, and I have argued over 2,000 appeals so far. So I do have a fair idea as to how, what are the various steps. And one of the most important step where I say pupillage and mentorship is very important is when a client enters your chamber and your office and he places his file before you and asks for preliminary opinion or your assessment or evaluation of the file. That is very important stage. And during that 15, 20 minutes or 30 minutes, you are under microscope of the client. And I have observed that they never come alone, they always come in a group when they are selecting lawyers. And they are doing their window shopping of lawyers. One of them would speak and two would silently observe whatever the lawyer says. And they are quite familiar and acquainted with the circumstances of the case. Since they have been to the trial court and since they have been through the investigation, they have a fair idea what the case is all about. So your opinion and your assessment is very important when a file is placed before you. So my suggestion and recommendation to you would be that whenever you form an opinion, you must examine two documents. There is no need to go through the entire file. This practice I would not encourage that. I would only recommend that you go through the first information report and the trial court judgment. Trial court judgment includes the facts, it includes the prosecution evidence. Most of the times it includes the arguments for the complainant. Most of the time it includes arguments for the defense. And then the crucial paragraphs start with reasoning assigned by the trial judge as to why he has awarded conviction and why he is punished. So you must do a quick assessment of the file in those 15 to 20 minutes and form an opinion as to what you would say. So take half an hour, examine the file, assess the file, make your notes. And those notes are very important because that gives you an opportunity to critically analyze and evaluate the trial court judgment. All the flaws, all the dents, all the shortcomings, they would be evident to you if you are carefully reading the trial court judgment and then give your very honest and very fair opinion to the client. This is very important. Abstain and refrain from giving assurances and guarantees. Try to build your image without giving guarantees. You may use the word probabilities, that there is a high probability, there is a high likelihood that this would be the outcome. And you must give fair advice. I have been giving very fair advice to clients whoever approach me, and with the passage of time you develop a reputation that if you want to hear the truth and if you want to hear what is the realistic probability of your appeal, so you go to such and such lawyers. So your reputation travels fast, and it is very important that when you give your advice, give sincere and complete advice, whatever is in the best interest of your client. So that is the stage. Difficulties, they arise when, client places the file before you and he has filed a jail appeal, or he has filed a very simple
draft prepared or executed by a professional stenographer, which are readily available in the market. They would just change the name of the appellant and the grounds would be the same, and you get the draft. So the appeal which is filed never gives you an indication or an idea what the case is all about. There is no concept of drafting. Drafting is simply disappearing from criminal litigation. Even in bail applications, I have noticed that. But today I would not comment on bail applications. I would confine today's lecture to appeals only. So whenever I see an appeal, I have hardly seen a draft which contains or which carries grounds on which conviction or sentence is being challenged before the High Court. So I would strongly recommend that when a client approaches you within the limitation period, please draft proper appeal containing the correct grounds on which you are challenging the decision. This is very important, because if you do that, lawyer would simply go through the appeal and would make up his mind whether there are merits in the appeal or not, whether he should accept the brief or not. So in short, the prevalent practice is that when you are approached for an appeal, the matter is ripe, rather overripe, for arguments in the court. It is ready. And parties wait till the very end to engage a counsel. They would perhaps only give you a week. The file would be ready. The judge must have already taken up the appeal and is not inclined to grant an adjournment, and you are under pressure to appear in the court well prepared to make your submissions. So अपील का जो कॉन्टैक्ट है विद लॉयर्स वो दो स्टेजेस पर है इन पाकिस्तान. The first stage is when the family or the appellant challenges the conviction, and he challenges it through any lawyer and files an appeal, which is not a professional appeal, which does not contain any grounds, and he files it and then he waits for 3-4 years when the matter is ripe. For instance, at the moment 2016-17 appeals are being argued. We are in 2021. So the clients, all those clients and all the parties, who were convicted back in 2017 are now vigilant and are now careful that their appeals would be taken any day, any moment by any judge. So one way of dealing with this situation is, and there's absolutely no harm, and make a note of this point very, very carefully. You can always file a new appeal along with the already filed appeal containing the grounds. And the reason is, you are officially placing on record your written submissions. There is no other way that your submissions can come on the record other than your grounds, other than the draft. So I have seen it, some lawyers filing second appeal on jail appeal, because the second appeal contains proper grounds, and it is an indirect and a very tactful way of bringing your submissions on the record, and those submissions can remain on the file till Supreme Court, till review. Let me tell you why. Lately, I have seen in 20 decisions in 2020 where, the honorable judges of the High Court have written down that these are the submissions of the counsel in support of this appeal, A, B, C, D, E. And those submissions are the submissions which are mentioned in the appeal. So your assistance in the court is not incorporated sometimes in the final order, but your appeal and your grounds are there, so you can always agitate this point. So drafting has enormous importance even in criminal appeals, but
this over a period of time, the prevalent practice which I would condemn and would not appreciate is not to file a proper appeal. So appeals have to be properly filed, they have to be properly worded, और मैं हमेशा I recommend and suggest in every case, they are always, or in every bail application or in every appeal, they are always between 3 to 5 main points. Put your case in ground A, B, C, D, and maximum E. Go no further than that. So explain your case properly in A, B, C, D. Your A, B, C, D has to be most convincing. Do not write jurisprudence, do not mention philosophy, because judges would only go to your prayer, and maybe if they get a feel that this lawyer has written something in the draft, they would read ground A, B, C, D. So put your case always in A, B, C, D, and you will reap the benefits of, because judges most of the time make up their minds the night before. And they are convinced and persuaded the night before if your grounds contain, why are you seeking the relief? So the first decision which a lawyer must make is, with all honesty, should he accept the appeal or should he not? If he accepts the appeal, be very honest in your advice and tell the clients what is the probability of acquittal, what is the probability of mitigation, reduction in sentence, or if it's a borderline case, it may result in conviction, it may result in an acquittal, give that advice as well. And if you feel that the evidence is exceptionally strong and overwhelming against the accused, convey to your client that this case is very strong and you don't think that there is any probability of result. I must share this with you. For instance, for example, if I have argued 10 cases, out of 10 cases I have got the desired relief in 8 or 9. And the reason is that I first convinced myself that I have a case. मैं ही convince नहीं तो मैं presiding officer को क्या convince करूँगा कि मुझे result दें. So I have to be convinced first that this is the roadmap, this is the route, or this is my game plan to get the relief. So जो 2 cases हैं या एक केस है which has not given me result, probably those are the briefs where I have worked hard the most or have been the most memorable briefs for me, because I remember putting in extra effort in those cases where I was not getting the relief, although I thought I was convinced that I deserved relief. So 10 में से 8 केसेस में रिज़ल्ट मिला. अगर 1-2 में रिज़ल्ट नहीं मिला तो वो मेरे लिए ज़्यादा मेमोरेबल, ज़्यादा चैलेंजिंग केसेस रहे, क्योंकि शायद मैंने उनमें ज़्यादा मेहनत की या ज़्यादा एफर्ट की. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हर क्लाइंट का राइट होता है. Even if someone is caught red-handed, even he has the right to, challenge his arrest or challenge his conviction. तो मगर nevertheless आपका ओपिनियन और एडवाइस देना, दुरुस्त एडवाइस देना, वो बहुत ज़रूरी है. Because this is a reputation which you are making for yourself for the rest of your life. And let me tell you, a lawyer works as long as he is breathing. बाज़ लोगों की 60 पे रिटायरमेंट हो जाती है. मैंने देखा है वुकला, they don't give up. So as long as he is speaking, even with hearing aids, even with a stick, even with support, he comes to the court. So अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे तो बड़ी लंबी इनिंग्स होती है. So अपनी रेपुटेशन पे और क्रेडिबिलिटी पर काम करें. ये जो शॉर्ट लिव्ड थोड़ी देर की हवाएं होती हैं सियासी या इलेक्शंस की,
या झूठ बोल के या गुमराह करके क्लाइंट को, उसका फ़ायदा कोई नहीं। उससे आप एक शॉर्ट इनिंग्स तो खेल पाएंगे मगर कभी भी आप टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं बनेंगे। और मैं आज के लेक्चर के लिए भी आपको ये कह रहा हूँ कि आज आपको सिर्फ इस लेक्चर के थ्रू जो लोग इसको सुनेंगे, और मैं कानूनदान की एक दफ़ा फिर इनको अप्रिशिएट करूँगा कि ये इनिशिएटिव इनका, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, ये पता नहीं कितने हज़ार लोग KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में लोग बैठ के ये सुनते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। आप लोगों को तो फिर लाइब्रेरी मैसर है और रोज़ एक से बढ़कर एक वकील देखने को मिल जाता है हाई कोर्ट की, जिसकी आप परफॉर्मेंस देखते हैं और वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। सो व्हेनेवर यू फाइल एन अपील, file the appeal under the correct section. If you are filing an appeal under some special law, it could be CNSA, it could be NAB, it could be anti-corruption, it could be ATA. There is always accompanying appeal provision under the statute. So do not forget to mention that or include that. Now, there are, rights have been given to the aggrieved party. Aggrieved party is not just confined to the complainant. It extends to the relatives. It extends to the family now of the legal heirs, of the victim. So, the scope is now very broad as to who can file an appeal and who is aggrieved within the meaning of criminal law. Moving forward, from right to appeal you have to, today we will be talking about सेक्शन 410, दोनों साइडों की आज बात होगी। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की बात भी होगी और अपील अगेंस्ट एक्विटल की भी बात होगी। बट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट विच आई हैव गिवन यू, हमने उस पर कि आपने सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि मैंने अपील एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, अपील एक्सेप्ट करके क्या एडवाइस है जो देनी है, कितनी एडवाइस है जो देनी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दिस इज़ एन आर्ट एंड दिस इज़ अ स्किल। लॉट ऑफ पीपल थिंक दे कैन लर्न लॉ और दे कैन अंडरस्टैंड लॉ विदाउट हैविंग अ प्यूपिल मास्टर। दिस इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। अ प्यूपिल मास्टर टीचेज यू सो मैनी थिंग्स। If he permits you and allows you to remain in the room when he's dispensing or giving advice to the client, the first round, कितनी बात बतानी है, कितना मशवरा देना है, क्या मशवरा देना है, इंगेज कैसे होना है, इम्प्रेस कैसे करना है, फ़ी कैसे कोट करनी है, कैसे लेनी है, ये किसी किताब में, मेजर एक्ट में, क्रिमिनल रेफरेंसर में ये बातें नहीं लिखी हुई। ये ऑब्जर्वेशन है। और आज का टोटल लेक्चर, बाकी भी जितनी बातें हैं, किसी एक किताब ने मेरी मदद नहीं की, ना करेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ हाउ टू आर्ग्यू एन अपील। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि आपने अदालत में बैठ के क्या नोट किया, क्या ऑब्ज़र्व किया। और मैं एक बात यहाँ फिर कहता हूँ, ऑल्दो वी वेयर सूट्स, जिस पे आजकल काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है कि ये यूनिफॉर्म जो है ये वेटर्स पहनते हैं और इसको उनको नहीं पहनने देना चाहिए। हम इस इशू में भी नहीं डलेंगे कि वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी नज़र में लिटिगेशन, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई एक शख्स सिखाएगा तो वो गलत है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं नेट्स में गया तो मैंने कहा क्रिकेट किसने सिखानी है? उसने कहा किसी ने नहीं सिखानी। जिस बैट्समैन का जो पसंद है उठा लो, जिस बॉलर की जो चीज़ पसंद है उठा लो। इवेंचुअली यू हैव टू वेयर अ कॉम्बिनेशन, कि ट्राउज़र कोई है, शूज़ आजकल ब्लू और ब्लैक के साथ कुछ लोग ब्राउन शूज़ भी कैरी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, दैट इज़ पॉसिबल। सो टाई कुछ है, शर्ट कुछ है, रुमाल कुछ है, ब्लेज़र कोई है, ट्राउज़र कोई है। ख़वातीन भी जैसे दे कैरी देमसेल्फ वेरी वेल, डिफरेंट clothing, different दुपट्टा और different coat, but overall they have to carry it well। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने अपनी किसी एक शख्स में इतना कहत और बोतान है इस वक्त क्वालिटी लॉयर्स का जो आपको इंस्पायर और इम्प्रेस करें इन लिटिगेशन के, किसी एक बंदे से मुकम्मल चीज़ मिलेगी नहीं। तो कहना ये चाहता हूँ जिससे जो अच्छा मिलता है उठा लो।
किसी का रुमाल अच्छा है, किसी का कोट अच्छा है, किसी की टाई अच्छी है। ओवरऑल watch variety of lawyers when you go to the court, observe them pleading, see them arguing, see them working hard, और जिसका स्टाइल इम्प्रेस करता है, जिसकी एविडेंस की प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, आप उससे वो चीज़ ज़रूर उठाएं इससे पहले कि वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएं। मैं मरहूम एजाज़ बटालवी साहब से, मरहूम ख्वाजा सुल्तान साहब से, मरहूम जाहिद बुखारी साहब से, मरहूम एक लंबी फ़हरिस्त है मेरे पास, चौधरी मोहम्मद हुसैन छच्छर साहब से, मरहूम अनायतुल्लाह चीमा साहब से, वो नहीं है इस वक्त, मगर मैंने हर किसी से कोई ना कोई चीज़ जिसकी जो अच्छी लगी है वो अडॉप्ट करने की ज़रूर कोशिश की। सो आपको सीनियर लॉयर, सो ये एक मैदान है जहाँ पर आप कोर्ट में बैठते हैं, और कोर्ट में जब बैठे तो बड़ा विजिलेंट होके और केयरफुल होके बैठें कि आप वहाँ पर बैठ के, अगर ख़ुद से आपको अच्छा उस्ताद नहीं मिल सका, लेस प्रिविलेज्ड हो या अनलकी रहे हो पीपल मास्टर ढूंढने में, तो जो 2-3 अदालतें हैं वहाँ पर बाकायदगी से बैठें तो बड़ा फ़र्क आएगा। अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ें, नेटफ्लिक्स पे अच्छे प्रोग्राम्स देखें, BBC सुने, अपने तलफ़्फ़ुज़ को, क्योंकि व्हाट इज़ इट दैट वी आर giving to our client? Our ability to speak, our services. I can understand your case better and I can argue your case better. वरना साइल तो खुद बोलता है, उसको भी परमिशन है। Why should he hire you? He hires you because you give him the promise. I understand the law. I know the law. I would understand the facts from your file. And I would put your case in a very convincing and persuasive manner before the judges to get you the desired results. So अगर सर्विस ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तैयारी नहीं है, मेहनत ही नहीं है, अगर यही नहीं पता हाउ टू आर्ग्यू दी अपील, तो फिर फ़ायदा क्या उस बात का। तो चूँकि हमारे पास बार कोर्स नहीं है, फ़ौरन तालीम बहुत मुश्किल भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो जो कुछ लोकली अवेलेबल है उसी पर सब्र व कनात करते हुए उसी को अगर अपना लें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कमिंग ईयर्स। इस बात को जानते हुए कि मेयार और स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, नोज डाइव गिर रहे हैं, और हम भी जो लेक्चर दे रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले, वो लेक्चर कुछ और थे, अब के लेक्चर कुछ और हैं, आने वाले लेक्चर शायद कुछ और हों, कि इनसे कुछ ना कुछ बिगड़े ज़रूर, यानी बिगड़ने से मुराद संवर। एवरी जज हैज़ डिफरेंट वे एंड स्टाइल ऑफ एडजुडिकेटिंग और डीलिंग विद अपील्स। वी हैव जजेस हु वुड नॉट गिव यू more than 5 minutes to argue your appeal. If you are lucky, 10 minutes. And we have judges who would give you 1 hour and 10 minutes to argue your appeal. But you must know the judge before whom you are placed. Without knowing the judge, some judges have preference over facts. Some like it if you refer it to the law. Some would not let you proceed until and unless you are fully aware of the latest developments as to what the Honorable Supreme Court has stated in 2021. What are the latest judgments? So मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक judgment got me result in January 2021 but did not get me the same result in March 2021 because the Supreme Court changed its views in 2 months, and judges of the High Court, they keep themselves up to date, abreast with latest developments and changing laws. और एक और ट्रेंड चला है, although personally speaking, in my opinion, मैं उस ओपिनियन को मैं समझता हूँ इतना मुनासिब नहीं है कि सिर्फ रीसेंट जजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना। 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 9 शायद आप जो 1970 या 1980 की जो जजमेंट्स हैं या 50s या 60s की जजमेंट्स हैं वो मोती और कोई परो नहीं सका आज दिन तक, या वो जो बातें तब की हैं वो
आज दिन तक वो चल रही हैं। क्या वजह है कि इंग्लैंड आज भी आपको एक्टस रिया पढ़ाता है, मेंस रिया पढ़ाता है, कॉजेशन पढ़ाता है, तो 1910 का एक ही केस है जो पढ़ाता है, वो आगे ही नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 में लिखने वाले नहीं। सो केस लॉ को उतना डेवलप होना चाहिए और उतना ही आना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। नेसेसिटी है। कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए केस लॉ नहीं लेना कि 4 मेरे खिलाफ हैं और 4 मेरे हक में, किधर जाए। तो केस लॉ इज़ ऑलवेज वेरी रेलिवेंट, केस लॉ की यूटिलिटी इज़ वेरी, बट नोइंग दाई जज इज़ अ प्रिंसिपल which will get you great benefits in coming years. Without knowing the judge, उन्होंने आपको 10 मिनट सुनना है या उन्होंने आपको 1 घंटा 10 मिनट सुनना है, ये आपको नहीं पता लगेगा। ये कुछ एग्जाम्पल आपको शायद सामने लिखी हुई। हमने केस आर्ग्यू किया आबिद रज़ा, ये MNA कोटले से, तो वो केस जजेस 4 दिन सुनते रहे और 17 से 18 केस लॉ दहशत गर्दी पर चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे उनके साथ, द अदर बेंच ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बेंच, उन्होंने 18 केस लॉज को बारीकी में सुना कि किस केस लॉ ने क्या इस्टेब्लिश किया। सो आपने केस की नब्ज़ पे हाथ रखना है कि इसको 18 मिनट में सुना जाएगा या 18 फैसले सुने जाएंगे। वो दूसरा केस शायद नीचे मेंशन है, खतीजा सिद्दीकी का केस, अपील अगेंस्ट एक्विटल की तमाम केस लॉज उसके अंदर डिस्कस हुए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल्स को हैंडल करने के लिए। तो नोइंग द जज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उनका मिजाज, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, कितना टाइम मिलेगा, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मिसाल देता हूँ, एक जज साहब हैं, आप जाके उनको कल सुबह कहें कि सर ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, टाइम चाहिए, वो कहेंगे नहीं मिलेगा टाइम, अभी आर्ग्यू करोगे जो आर्ग्यू करोगे, देयर इज़ नो टाइम। एंड डोंट डू दैट। डोंट एक्सेप्ट अ ब्रीफ इफ़ यू आर मेयरली अपीयरिंग इन द कोर्ट कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी देने आया हूँ, और जब इजाज़त नहीं मिलती तो आप फाइल भी खोल लेते हो और फिर आप आर्ग्यूमेंट्स भी दे देते हो कोर्ट को और असिस्टेंस भी दे देते हो। फिर शर्म और भी ज़्यादा आती है कि केस भी तैयार है, वो जज साहब भी मुस्कुरा के आपकी असिस्टेंस ले रहे होते। सो ईदर टेल योर क्लाइंट्स टू मैनेज एडजर्नमेंट्स वंस यू स्टेप इनटू द कोर्ट विद योर पावर ऑफ अटॉर्नी, डोंट सीक एडजर्नमेंट। चाहे ओवरनाइट आपको बड़ा होता है, रात बहुत होती है, 4-5 घंटे आप बैठ जाएं और अपना केस तैयार करें, तो देयर इज़ नो नीड एंड नो टाइम कि आप जाके एडजर्नमेंट। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी रेपुटेशन ऑफ कोर्स जो है वो बनती है दैट यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझते। मैं एंड में एक बात कहूँगा, व्हेन यू अपीयर इन द कोर्ट इन एन अपील, ऑब्जेक्टिव से पहले मैं एक पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूँ नो दाई जज से पहले कि योर अपीयरेंस इन द कोर्ट की एक हेडिंग है, कोर्ट अपीयरेंस। कोर्ट अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तोहफे में मिल जाए। मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है और किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है वरना किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ योर ग्रिप ओवर द क्रिमिनल लॉ एंड योर मास्टरी ओवर द फैक्ट्स से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा। You have to be very well prepared, you have to be very well organized, you have to be very vigilant in the court. अपील कोर्ट्स वो कोर्ट्स नहीं है जहां जजेस बुत बन के बैठे हों और आपकी बात ही सुनते रहें। वो कहेंगे छोड़ो इस बात को, हमारे सवाल का जवाब दो। सो मौके पर बात सूझनी चाहिए, मौके पर आमद होनी चाहिए। और फिर अक्सर लॉयर से गलती करते हैं, सर मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले तो सिर्फ मेरी सुनो। वो नहीं करना। जज अनॉय हो जाएंगे, जो बनती हुई रिलीफ आपकी झोली में डालनी है नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ जज हैज़ अ स्पेसिफिक कैटेगोरिक क्वेश्चन, एड्रेस दैट क्वेरी, दैट कंसर्न फर्स्ट। सेटिस्फाई द जज फर्स्ट द कंसर्न विच ही हैज़ इन हिज माइंड रादर देन आप अपनी सुनाएं। ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ये काम ना करें।
एक सवाल पूछा जाता है, रोक के तहम्मुल से पहले सवाल को अंडरस्टैंड करें और जितना अच्छा जवाब मौके पर सूझता है उतना अच्छा जवाब मौके पर उस बात का दें, और वो तभी दे पाएंगे अगर पूरी फाइल पड़ी होगी तो, क्योंकि वो सवाल कहीं से भी उठ सकता है। 3 ही चीज़ें कहता हूँ और वो तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर वॉइस। माइंड एब्सेंट है, हाजिर नहीं है, तो फौजदारी मुश्किल हो जाती है। इशारे कर रहे हैं, उंगली पॉइंट आउट करेंगे, बॉडी को ठीक नहीं रखा हुआ आपने, डमीनर ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, कोट का या टाई का आपका कॉलर का बटन खुला हुआ है, या शेव ठीक से नहीं है, या इफ़ यू आर नॉट appearing well groomed, this makes all the difference. Court appearance is very important, और court appearance में controlling your body, controlling your mind, controlling your voice, बड़ी बड़ी objectionable tones आ जाती हैं वकीलों की। और एक बात और समझें, जजेस पूछते हैं क्या चाहते हो, इक्विटल मांग रहे हो या रिडक्शन इन सेंटेंस मांग रहे हो। इक्विटल मांगने का लहजा और रिडक्शन इन सेंटेंस का लहजा और, लोगों को पता ही नहीं लहजे में फ़र्क क्या होता है। एक में फ्रंट फुट पे खेलना है, एक पे बैक फुट पे खेलना है। मिटिगेशन है, हाथ में कशकौल है, माय लॉर्ड प्लीज। आपकी आवाज़ में ही दर्द आ जाए, वो जब तक नहीं आएगा एग्रेसिव होके चीज़ मांगते रहोगे, और वकला को पता नहीं, मैं 2 घंटे में सारी बातें नहीं बता सकता। जजेस कहते हैं प्लीज़ आर्ग्यू मिटिगेशन, इज देयर एनी एक्सटेनुएटिंग मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, आप फिर मेरिट्स पर अपील आर्ग्यू करना शुरू कर देते हो। गलत, समझते नहीं हो कि मिटिगेशन क्या है, कुछ देर के बाद हम उस पर जाएंगे। सो कोर्ट में आप जब जाते हैं, मैं एक मिसाल लेकर आया हूँ डिस्पोज्ड ऑफ। मेरा एक असूल है और ये मेरा असूल मेरी टीम के साथ भी है। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं कभी कोर्ट में परफॉर्म ना कर पाऊँ अगर मेरे साथ मेरी टीम ना हो। एक टीम वर्क होता है और हम पूरा टीम वर्क करके कोर्ट में जाते हैं। मेरा एक एक पेज टैग्ड होगा, मेरे वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस मार्क्ड होंगे, मेरे परफॉर्मा मेरा बना होगा, नोट्स मेरे बने होंगे, और जहाँ मैं समझता हूँ मैं फंसूंगा वहाँ का केस लॉ मेरे पास होगा। सो आई वुड हैव माई पेपर बुक नंबर्ड, अंडरलाइंड, एंड आई वुड, जिस सवाल का जवाब मैं 3 सेकंड में ना दे पाऊँ मैं पैनिक कर जाता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है और मैं थिड़क जाता हूँ कि मुझे इसका जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरा वकील तो छीनने को तैयार है आपके मुंह से जुमला कि मैं पहले बात बता दूं, इससे पहले मेरे नंबर पहले बन जाए। हालांकि बॉल आपकी कनेक्ट हुई हुई है, गुफ्तगू आपकी चल रही है। तो क्या परफॉर्मा हो, क्या मेहनत हो कि 3 सेकंड के अंदर जवाब आए। 3 सेकंड से ज़्यादा मोहलत मिलनी नहीं है, ये मैंने नोट किया हुआ है कितना टाइम मिलता है, और फिर कोई और जवाब दे जाता है। प्रोसिक्यूशन आपका केस आर्ग्यू करना शुरू कर देती है, डिफेंस का मौका मिल जाता है, क्योंकि डिसकनेक्ट हो जाते हो। सो कहने की बात ये है, डिसकनेक्ट नहीं होने देना जज को किसी भी वक्त। जब जज साहब डिसकनेक्ट हो गए, ये बताएं जी कि ये गवाह जो हैं, ये इनकी रिश्तेदारी क्या है, इधर उधर देख रहे हैं, ये गवाह कहाँ के रहने वाले हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, उन्होंने फाइल बंद कर दी। जी सर आप बताएं, आपको एम्बेरस नहीं करेंगे जजेस। एक इम्प्रेशन बन गया, ये तैयार होके नहीं आता, इसको पता ही नहीं है, इसको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तो एविडेंस की क्या तवक्को करूँ इससे कि उस पर असिस्ट करेगा। सो आपको आपका ब्रीफ पे कमांड ही नहीं है, आपसे बात हट के दूसरे के पास चली जाएगी, और फिर आप दोबारा वो इंग्लिश लिटरेचर में ना पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन करना, सो लूज़ करके रीगेन करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोबारा एतमाद बनाओ कि मेरी गल दोबारा एक मौका होर दो। वो एक बड़ी मज़े की बात है, एक मौका होर दो, एक मौका होर नहीं मिलना, इम्प्रेशन पीछे रह जाता है आपका। सो आपने जब कनेक्ट कर रहे हो, आपका एक एक चीज़ पर आप अच्छी अपनी असिस्टेंस जो है वो देते रहें। और अक्सर मैं कहता हूँ, मुझे मरहूम फ़र्रुख आफ्ताब साहब से एक चीज़ मिली,
आप लोग बहुत कम सीनियर लोग, बाज़ मेरे सीनियर्स बैठे हैं, वो जानते होंगे फ़र्क आफ्ताब साहब कौन है. My lord, page 63, line number 12. I would like to draw kind attention, please refer to these pages. जजेस भी होते हैं, पेज 63 लाइन नंबर 14, सस्पेंस हो गया, पता नहीं की निकलना, और निकलता है कुछ. वहाँ निकाल के सजेशन नहीं कोई पढ़ा देना कि जज आपके कहने पर खोल ली पेपर बुक, सफ़े पे चले गए. एक मौका आपने लूज कर दिया, झोल डाल दिया, तो बॉल आप डिस्कनेक्ट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट, दोबारा टिंग टिंग करके फिर कनेक्ट होना बहुत मुश्किल बात. डिस्कनेक्ट नहीं होने देना. व्हेन यू, कहना क्या चाहता हूँ, विद रिदम, विद फ्लो, विद मोमेंटम, आपने झोल नहीं आने देना अपनी असिस्टेंस में. आपकी असिस्टेंस है, वो भी वो सवाल पूछते हैं तो वो भी, कि एक समा आप बांधे रखें. क्योंकि क्या चीज़ है जो हम दे रहे हैं, बोलना और पढ़ के बताना, अगर वो ही नहीं आता तो फिर सर्विस लेनी किसने है हमारी. खुद ही आर्ग्यू कर लेते हैं लोग अपना केस इन पर्सन. योर एबिलिटी टू प्रेजेंट द केस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो कोर्ट अपीयरेंस की बात हुई, और मैं इधर आपकी तवज्जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर लाऊंगा, और अब हम बड़ी तेज़ी से मूव करेंगे. मेरे लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. फॉर 154 विच हैज़ अटेन्ड लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, एंड द रीज़न इज़ 154 हैज़ अटेन्ड सो मच इम्पॉर्टेंस. इट कंटेन्स एवरीथिंग. Who is the complainant? What is his address? Who are the accused? What is their parentage? What is their residence? What armed were they carrying? What role did they? What part did they play in the occurrence? Whose shot, whose fire has hit whom? What is the motive? What is the conspiracy? Everything. ये कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है एक्सटेंसिव. सिर्फ मुद्दई सजाए मौत नहीं लिखता है FIR में, उसका बस चले वो भी लिख दे कि वो भी मैं ही दे देता हूँ. ऐसी FIR भी आई हैं, FIR के अंदर उसने लिखा है लिहाजा इसने जुर्म ज़ेरे दफ़ा 302, 324, 148, 149, 109, 201 इसने कमिट. इसी हफ्ते एक केस मैंने देखा है, मैंने ऑनरेबल जजेस को बताया, सर कोई ऐसी FIR भी होती है जिसमें मुद्दई वकील भी ना हो, और फिर क्या ये मैंने खुद ही लिखी है. कैसे लिखी है खुद? आपको बताया किसने इन जुर्मों का कि आप लिख रहे हैं कि ये इसका मुर्तकब हुआ, और फिर ये कार्रवाई पुलिस की बातें कि ये जुर्म कौन सा हुआ है, आपका काम नहीं है. योर टास्क इज़ टू सिंपली नरेट द इंसिडेंट, द क्राइम, नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स. मैं आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मशवरा ये दूंगा कि FIR का पोस्टमार्टम करना है, 3 से 5 दफ़ा पढ़ना है. मेरा आपको एक गारंटी और प्रॉमिस है, तीसरी और चौथी दफ़ा जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैं बदल गया हूँ या FIR बदल गई है. ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी आपके जो पहली रीड, दूसरी रीड, तीसरी रीड में आई नहीं होंगी सामने. और चौथी रीड पे व्हाट आई डू, शायद मेरा ज़हन डल है, आई टेक लॉट ऑफ टाइम. मैं बैठ के पूरे वकूए को इमेजिन करता हूँ, पिक्चर करता हूँ, एक फिल्म चलाता हूँ कि ये वकूआ ऐसे हुआ, और बात गौर से अब पिक कर लीजिएगा. जिस चीज़ की मुझे समझ आ रही हो, दैट इज़ द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. जिस चीज़ की मुझे समझ ना आ रही हो, दैट इज़ द केस ऑफ द डिफेंस. जब आप इमेजिन करते हो कि बाप बेटा कह रहा है मैं पीछे पीछे था, मेरा बेटा 20 कदम आगे आगे था, क्यों साथ क्यों नहीं चलते बेटे के? तुम तो चांस फिटनेस हो, तुम हो ही नहीं साथ. तो मेरा माइंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा. और फिर इतनी फायरिंग हुई जो हम छुप के देखते रहे, मैं देखता रहा. मोटिव तुमसे, दुश्मन तुम हो, तुम्हें स्पेयर किया, तुम कैसे देखते रहे? सो दैट इज़ द केस ऑफ द डिफेंस. अ लॉट विल मेक सेंस टू यू इन द FIR. A lot will not make sense to you. What is not making sense to you is your cross-examination, is the case of the defense. So FIR का repeated
मुताला, जो लोग ट्रायल करते हैं ना, उन्होंने अपनी FIR को लाल पीला किया होता है। वो AD साहब पीछे बैठे हैं, चौधरी मोहम्मद हुसैन चच्चर साहब के साथ उन्होंने काम किया। एक एक लाइन पे फोकस होता है कि इस लाइन से क्या क्या सवाल निकलते हैं, कितनी देर एक एक लाइन को रगड़ा जाता है कि इसमें से क्या निकालना है। जो लोग ट्रायल्स करते हैं, एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो रीड द FIR एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। उसी पर पूरा केस जो है वो बिल्डअप होता है। उसको इमेजिन करें, अंडरस्टैंड करें, मेक योर एक्सटेंसिव नोट्स, और एक और एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करें। FIR पढ़ के फिर एक टाइम आता है जब आप मरीज़ चल के आता है तो आप उसके चलने के अंदाज से बता देते हैं कि ये टाइफाइड है या कोरोना है। जब आपको तजर्बा हो जाता है कि ये मौसमी बुखार है, इसने AC चला लिया है वक्त से पहले। FIR पढ़ के प्रिडिक्शन करें कि ये केस कैसे आगे निकलना है। ये एक टाइम आता है आपको FIR और आपका तजर्बा बता देता है कि किस डायरेक्शन में आपने निकलना है इसको लेकर। ये FIR प्रोबेबल है, इम्प्रॉबेबल है, रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। अपना डायग्नोसिस करें, अपनी प्रिडिक्शंस दें, अपने नोट्स बनाएं, अपने एक्सटेंसिव नोट्स बनाएं। और जब आप कोर्ट में जाएं, किसी भी कोर्ट में जाएं अपील आर्ग्यू करने से पहले, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका प्रिलिमिनरी परफॉर्मा है। ये आपकी स्क्रीन्स पर भी सामने विजिबल है, और ऑनलाइन जो लोग लेक्चर देखेंगे ये उनके लिए भी मुमकिन करेगी कानूनदान की टीम के ऑनलाइन ये परफॉर्मा क्या है। ये वो सवाल हैं जो 3 सेकंड के अंदर जवाब जिनके देने होते हैं, और ये जजेस सवाल पूछते हैं। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, अरेस्ट किसने किया, कितने लोग एक्विट हुए, क्यों एक्विट हुए, जो लोग एक्विट हुए कौन सा पैराग्राफ उनसे डील करता है, सेंटेंस क्या है, किस दिन अरेस्ट हुआ, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस कहाँ है, FIR कहाँ दर्ज हुई, FIR ज़ुबानी थी, तहरीरी थी, मरसला बना कहाँ हुआ रिकॉर्ड, थाने कब आई, पोस्टमार्टम किसने किया, कितने बजे किया, डेड बॉडी किस वक्त आ गई थी हॉस्पिटल में, किस वक्त पोस्टमार्टम शुरू किया, MLC कहाँ है, डॉकेट है, पुलिस एग्जामिनेशन है या खुद ही चल के आया, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, चशमदीद बताएं कितने हैं, कितने नामजद हैं, कितने पेश हुए, उनके PWs के नाम बताएं, उनकी वल्दियत बताएं, उनकी रिहाइश बताएं, उनका इंटरसी रिलेशनशिप बताएं, डिसीज्ड के क्या लगते हैं, डिसीज्ड कौन है, डिसीज्ड की उम्र क्या है, कितनी फायर आर्म इंजरीज हैं, कितने दिन सर्वाइव किया डिसीज्ड, ज़ख्मी कितने पेश हुए, MLC हुआ किस वक्त हुआ, ज़ख्मी कमेंट आ जाएगा, ज़ख्मी से कैसे बाहर निकलोगे, निकल आऊँगा सर ज़ख्मी से, पहले प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले लो, रिकवरीज क्या है, फ्रॉम द स्पॉट क्या है, अरेस्ट के बाद रिकवरीज क्या हुई, पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की कोई रिपोर्ट है आपके ख़िलाफ़ है, आपके हक़ में, जाए वकुआ कहाँ है वो बताएं। ये वो सवालों, ये एक वॉली ऑफ क्वेश्चंस हैं विच वुड कम योर वे, एंड यू मस्ट। ट्रायल कोर्ट जजमेंट किस तारीख की है, ट्रायल कोर्ट जजमेंट में कितने लोगों को बरी किया, कितने लोगों को सज़ा हुई, ये परफॉर्मा आपको, अगर इस परफॉर्मे को भी आप अगर कॉपी करना शुरू कर दें तो 90-95% अफाका रहेगा आपको कोर्ट में कि ये वो सवाल है। सो ये पता नहीं क्यों पर हम आपको वो तोहफे दे रहे हैं जो शायद हमारे सीनियर्स ने हमें नहीं दिए थे। हमारे सीनियर्स हमें कहते थे एक दिन में एक बात बताएंगे, मैं आपको 2 घंटे में 20 साल की बातें बता रहा हूँ। ये इसके लिए हिम्मत भी चाहिए होती है और एक नीयत भी चाहिए होती है कि निज़ाम को बेहतरी करनी है। मेरे उस्ताद कहते थे बेटे एक दिन में एक बात बताऊंगा, बाकी कल पूछना, सारा कुछ एक ही सांस में नहीं बता देना हमने। ये इसीलिए कि इंटर्नशिप्स मिलना, प्यूपलेज मिलना बड़ा मुश्किल है और हर कोई चाहता है कि वो अपील्स आर्ग्यू करे और नाम पैदा करे। सो ये शॉर्टकट्स हैं जो आपकी सहूलत के लिए ये दिए हुए हैं। सो आपने इस परफॉर्मे को, मेरा आपको मशवरा है कि ये परफॉर्मा आपको किसी को वैसे भी चाहिए होगा तो
मेरे से या मेरी टीम से यू में कॉन्टैक्ट आपको वो भी मिल जाएगा, पर ऑनलाइन भी होगा। आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, हर अच्छे चेंबर ने एक अपना स्टाइल बनाया हुआ है दैट दिस इज़ द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब FIR पढ़ने नहीं देते थे, पहले 10 मिनट उन्होंने सवाल जवाब करना है, थाने का फासला बता दें। अब आप उस वक्त FIR खोलोगे, मैं फासला बताऊंगा। तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे पास रीडर फ्रेंडली ड्राफ्ट हो, मुझे पता हो कि मेरा थाने का फासला कहाँ लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट उस पर जाना है। ये बताएं, ट्रायल कोर्ट ने मोटिव बिलीव किया था या डिसबिलीव किया था? सर पैरा 13 पेज 225 सर, मोटिव डिसबिलीव्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। जजेस एप्रिशिएट प्रॉम्प्ट क्विक रिस्पॉन्स, असिस्टेंस जो नहीं मिलती, और जिससे जो मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब, एक बात तो पढ़ी लिखी बात है ना कि क्रिमिनल लॉयर्स उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते जितने कॉर्पोरेट सिविल लॉयर्स होते हैं। ये तासुर है और ये गलत तासुर नहीं है। हमारे लिफाफे खुले, पेपर लूज, हालांकि 300 से 400 रुपये लगते हैं एक फ़ाइल को खूबसूरत बनाने में, और बाकी डिसिप्लिन है अपना अपना कि आप अच्छे लगेंगे। नैब वालों की फ़ाइल बहुत बेहतर होती है, 302 वालों की अच्छी नहीं होती। खुले पेपर, 200-300 रुपये खर्च लें, फ़ाइल भी अच्छी, निज़ाम भी अच्छा, सिस्टम भी ठीक। सो चीज़ों का ऑर्गेनाइज्ड होना बड़ा ज़रूरी है। वो तभी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अब वो दौर ही नहीं है कि लाखों रुपए का दफ्तर हो, फैंसी ऑफिस हो। एक छोटा सा टेबल चाहिए, एक लैंप चाहिए, एक फ़ोन लैपटॉप पे हर तैयारी, बाकी नीयत चाहिए कि आप मेहनत करें, तैयारी करें, कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं। और पाकिस्तान की वकालत अनफॉर्चुनेटली एक मेजर एक्ट से आगे नहीं गई, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ों की। वहीं बैठे हुए कौन सा आप USA या UK में काम करें, इवन इंडिया आगे निकला हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, हम पीछे रह गए। वही कमेंट्रीज़ हैं, कोई नया काम नहीं है, कोई नए लिखने वाले नहीं है, कोई नई किताबें नहीं हैं ख़रीदने के लिए। कंप्लेन करने हम सारे बैठे हैं, क्योंकि रूट कामयाबी का कोई और है। अब रूट ये लेक्चर सुनना नहीं है या ये लेक्चर पे अमल दरामद करना नहीं है। सक्सेसफुल रूट कुछ और है, वो मैं आप सबसे सीक्रेट रखूँगा और मैं नहीं बताऊँगा वो रूट क्या है, कि कामयाबी का रूट आजकल क्या है, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या है। जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक। एक सीक्वेंस देने वाला हूं मैं आपको। दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैल्यूएबल टिप, कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस एक मर्डर की फाइल आती है, किस सीक्वेंस में आपने इस केस का मुताला करना है, वो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। FIR 3 दफ़ा, नोट्स प्रॉपर बना के, अंडरस्टैंड करके, रोल्स लिख के, पूरा परफॉर्मा बना के, गो टू द मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी मेडिकल फैला हुआ है वो सब देखें, चाहे वो इंजरी स्टेटमेंट है, चाहे वो इनक्वेस्ट रिपोर्ट है, चाहे वो MLC है, चाहे वो पोस्टमार्टम है या डॉक्टर का एग्जामिनेशन है। सो उसका कनेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई वुड जंप टू द मेडिकल एविडेंस, एंड फ्रॉम मेडिकल एविडेंस I would go to the ocular account, to the eyewitnesses account. चशमदीद गवाह पढ़ेंगे, चशमदीद गवाहों से मैं उठ के मैं लैब की रिपोर्ट्स पर आऊँगा, पार्सल्स पे आऊँगा, उनके गवाहों पे आऊँगा, मैं जो फॉर्मल विटनेसेस हैं, और फिर बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्ट से मैं नक्शा मौका देखूँगा, बिला स्केल भी देखूँगा, विद स्केल भी देखूँगा, और ड्राफ्ट्समैन को भी पढ़ूँगा। So from FIR to medical to ocular to recoveries to site plan, and from site plan सारा अपनी पिक्चर क्लियर करके then I would have some expectations कि investigating officer
से ये बातें शायद पूछी हों, आई वुड गो टू दी आईओज़, एक आईओ हो या 2 आईओ, मैं वो पढ़ूँगा। आईओज़ को पढ़ने के बाद मैं 342 पर जाऊँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं 342 पर कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं जो मिस आउट हो गया हो, जो ना पुट किया हो एक्यूज्ड को। व्हाट इज़ हिज रिप्लाई, व्हाट इज़ हिज रिस्पॉन्स। मे बी अगर मेरे पास एक्सेस है पुलिस फाइल्स का, जो नहीं होना चाहिए मगर अगर है, तो मैं देख लूँगा इसका फर्स्ट वर्जन क्या था। और उसको पढ़ने के बाद मैं एक अपना जो सीक्वेंस है, एक मेरे आगे कैनवस कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने एफआईआर से शुरू किया और मैंने देख लिया कि इन सपोर्ट ऑफ द एलिगेशंस ऑफ एफआईआर, और वो सपोर्ट क्या चाहिए, एक्टस रिया भी उन्होंने साबित करना है, मेंस रिया भी उन्होंने साबित करना है, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट करना है। लीगल बर्डन भी उनके ऊपर और एविडेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर, और वो मेरे ऊपर नहीं आएगा अगर मैं कोई स्पेशल डिफेंस रेज करूंगा तो रिवर्सल है। हाथ खड़ा कर दें, कौन सा सेक्शन है कानून शहादत का, मेरा ख्याल है 121 है। कि फिर वो रिवर्स हो गया कि मैं कहता हूं मैं पागल हूं तो साबित कर दो तुम खुद कि तुम पागल हो, या मेरा सेल्फ डिफेंस है, या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है। सो then the burden would be on me, and the standard on which I have to discharge that burden would be on the balance of probabilities, not beyond reasonable doubt, क्योंकि accused is the favorite child। अगर किसी के लिए रियायत है तो मुल्ज़िम के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं है। मगर ये किताबों में लिखा हुआ है। रियायत आजकल प्रोसिक्यूशन के लिए भी बहुत कुछ है, बड़ी रियायतें हैं प्रोसिक्यूशन के लिए, तो चांस तो कम लगता है कि ये स्टैंडर्ड्स को हम वो एमेलियोरेट कर सकें। So on the right, you will see what are the strongest points and how to assist the court. So, before going to the court, I would have my performa ready. It could be handwritten, it could be computer typed. Computer laptops आज सबके पास मौजूद हैं, सबके पास होने चाहिए, क्योंकि ये आपका शॉर्टकट है कि आप लाखों रुपए की लाइब्रेरी ना लें, एक पाकिस्तान लॉ साइट की मेंबरशिप ले लें या किसी से शेयर कर लें, मिल जाती हैं। आप पढ़ना लिखना चाहें तो मेहरबान हो ही जाते हैं लोग, इतने संग दिल नहीं है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन या एक्सेस डिनाई नहीं होता आपको। आप वो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यू फाइंड द वे टू गेट एक्सेस। सो एक कंप्यूटर, लैपटॉप, कागज़, कुछ स्टेशनरी, थोड़े से टैगिंग शैगिंग आप कर लें तो ये आपके लिए बड़ा मुफीद हो जाएगा। देन कम्स along with your performa would be your notes। मैं जब अपने नोट्स या अपने बहस तैयार करता हूं तो मैं 2 तरीके की करता हूं। If the bench is listening to me patiently, तो I have points which I will formulate। और एक काम मैं नहीं करता जो आपने भी नहीं करना, जिसको तबसरा और कमेंट्री कहते हैं। इफ़ द जजेस आस्क यू व्हाट एविडेंस वुड यू लाइक टू रीड, और आप एविडेंस पढ़ते पढ़ते बीच में लुकमे देने शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उर्दू में तर्जमा बताते हैं, जी ये कहा है जज साहब ने, तो आपको रोक दिया जाता है कि प्लीज़ ये ना करें, ना तर्जुमा बताएं, ना रेपिटेशन करें, ना हमें समझाएं, हम भी एविडेंस पढ़ें। सो अगर आपको एविडेंस पढ़ने का मौका मिल रहा है तो फ़िलहाल खामोशी से एविडेंस पढ़ें। जज साहब का अगर मिजाज पता है तो वो एंड में कहेंगे पेंसिल पकड़ ली उन्होंने और ये पेपर आ गया, व्हाट आर योर पॉइंट्स। ये खुशकिस्मती है किसी वकील की कि जज साहब ऐनक के ऊपर से या अंदर से देख के पूछें व्हाट आर योर पॉइंट्स, कि अब अपना केस समझा दो मुझे। अब ये पेंसिल अगर छुड़वा के ऐनक उतरवा दी, लेक्चर यही है, तो फिर नाकामी है। कि ये पेंसिल वो पकड़ी रखें और ऐनक चढ़ी रहे और आपकी तरफ देखते रहें और कनेक्ट रहें, वो इंटरनेट डिसकनेक्ट ना हो जाए जिसकी बात हो रही है। और झोल आए बगैर आप बताएं सर, माय सबमिशंस आर इट्स अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन।
डिस्कवरी ऑफ द डेड बॉडी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो आपने जज साहब को अनॉय किए, इरिटेट किए और रेपिटेशन किए बगैर। अक्सर वकला को कहा जाता है यार कितनी दफ़ा एक ही पॉइंट बताओगे। एक ही पॉइंट इसीलिए बार बार बता रहा है क्योंकि और गल्ला नहीं ने बातें, तो आपको तरह तरह का एम्यूनेशन रखना चाहिए जी। ये बात, दिस पॉइंट विल नॉट फाइंड फेवर विद द बेंच, आई विल मूव ऑन, आई विल लॉन्च अनदर रॉकेट। So I would start, I would give 2-3 minutes on first information report, I would give 4-5 minutes on medical evidence, I would give comments on the ocular account, I would give comments on the recoveries, I would give comment on the trial court judgment, on what the investigation is, and then I would, मगर जजेस पूछते हैं क्लैरिटी से करो, क्या आर्ग्यू कर रहे हो, इक्विटल मांग रहे हो, रिडक्शन मांग रहे हो सेंटेंस में, मिटिगेशन मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, अपने आर्ग्यूमेंट्स को उसी तरह आप बिल्डअप करें। और अगर फर्रुख आफ्ताब साहब से मैंने एक स्टाइल उठाया, पेज 93 लाइन 12, और अगर पहली बात पे जज साहब को कोई मज़ेदार चीज़ मिल जाती है, जजेस को क्या नहीं चाहिए कि आप कहें मैं सारा एविडेंस पढ़ूंगा, आप सुने। अगर उनको पता चल जाए कि आपने उनको एक सफ़े में से 2 चीज़ें पढ़ानी और कुल 15-20 चीज़ें पढ़ा के फाइल बंद करवा के सबमिशंस करवाने, दे वुड लव यू फॉर इट। उनकी मेंटालिटी को समझें कि वो क्या कैसी असिस्टेंस चाहते हैं, मगर जब वो पेज उतना, लाइन उतनी खोलें तो आगे कुछ मिले, उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, वरना वो आपके साथ आगे जब कहेंगे ना मैं आपकी उंगली पकड़ के विल वॉक यू थ्रू द एविडेंस, वो नहीं चलेंगे आपके साथ कि ये क्या दिखा दिया आपने। तो चीज़ वो दिखाओ जिससे कुछ मिले आपको, ताकि वो साथ साथ चलते रहें, डिस्कनेक्ट ना हो आपसे। और एविडेंस पढ़नी है, तबसरा कमेंट्री नहीं करनी। वो आपने यही कहना है, आई विल फॉर्मुलेट सम अप माई केस इन द एंड सर, आई वुड प्रेजेंट माई आर्ग्यूमेंट्स कि मेरा केस है क्या। और यही तरीक़ाकार है, यही असूल है। पहले FIR पढ़ दो, फिर एविडेंस पढ़ दो, फिर सबमिशंस कर दो, फिर कोई केस लॉ देना है वो दे दो और इजाज़त मांग लो, और कह दो रिबटल में कोई चीज़ है तो वो कह दूँगा। चौथी कोई बात है नहीं। यही तरीक़ाकार है, यही असूल है, इसी पर चलना है। और रखना आपने, सो दिस इज़ माई, ये सामने स्क्रीन पर नहीं आएगा, दीज आर माई नोट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स कि FIR पे ये है, मोटिव पर ये है, पोस्टमार्टम पर ये है, साइट प्लान पे ये है, और फिर कुछ फाइन ट्यूनिंग कि मैंने दूसरी दफ़ा केस पढ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ा, तो जो हाथ से चीज़ें लाया हूँ वो बाद में लाया हूँ। या अब मुझे पता लग गया कि जज साहब ने मुझे 10 मिनट नहीं देने, सिर्फ 2 मिनट देने और 1 लाइनर सुनने, तो वो 1 लाइनर्स मेरे क्या हैं? आई हैव टू सम अप माई केस। अब तो मैं ये कहता हूँ कि अब पेशेंस इतना कम हो गया है सुने जाने का अपील्स को। और ज़रा बात गौर से सुनिएगा, जो केस 2, 3, 4 साल में कंक्लूड हुआ, उसका फैसला 10, 15, 20 मिनट में होता है। सो स्टेक्स कितने हाई हैं, या तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, या कितने शार्प होने चाहिए हो आप, कि सालों में कंक्लूड हुआ ट्रायल फिर यूं चलता है टाइम में। साल हाई कोर्ट में 15 मिनट, सुप्रीम कोर्ट में 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। मगर ये कोई खुशकिस्मती की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट मिलते हैं। वो 2 मिनट में एक सवाल पूछेंगे यूं जूम इन करके, और अगर उसका जवाब वही दे पाएगा जो 20-25 साल की मार जिसने खाई होगी। वरना ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में तो एक ही सवाल पूछा जाता है, वो एक सवाल में ही सारा कुछ निकाल लेते, इस बात का जवाब दे दे, हमने नहीं सुनना और कुछ ले जाए हमें उधर, उस बात का जवाब दे। तो जिसका स्टेमिना है, जिसने
टेस्ट मैच वनडे 2020 खेला है, वही सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो सकता है और कोई नहीं खड़ा हो सकता। उनके डायनामिक्स और हैं, बड़े सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड जजेस बैठे हुए हैं, वो आपसे एक पॉइंट पूछते हैं। पूछा जाएगा आपसे कितने किस्म का एविडेंस है, व्हाट डज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंसिस्ट ऑफ, तो यू मस्ट नो sir there is last seen evidence, it's a case of circumstantial evidence, so it's a case of direct evidence। direct evidence जैसे दो आई विटनेसेस हैं, रिकवरी एविडेंस है, मोटिव एविडेंस है, ये एविडेंस है, वो एविडेंस है। सो यू मस्ट नो कितने किस्मों का एविडेंस है। और एक बात को समझें, कोशिश करता हूँ आपको बताने की, एविडेंस दो किस्मों का होता है एविडेंशियरी उसकी, या वो सपोर्टिव होता है या वो करॉबरेटिव होता है। समझाने की कोशिश कर लेता हूँ अगर आपको समझ आ जाए। अगर दो चश्मदीद गवाह हैं, तो एक गवाह दूसरे को सपोर्ट करता है, करॉबरेट नहीं करता। करॉबरेशन मिलती है एविडेंस ऑफ अनदर काइंड, ऑफ अनदर स्पीशी, ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर। सो ऑकुलर अकाउंट को करॉबरेशन मिलेगी मोटिव से या रिकवरी से। एक रिकवरी को दूसरी रिकवरी से करॉबरेशन नहीं मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। सो सपोर्टिव एविडेंस इज डिफरेंट, करॉबरेटिव एविडेंस इज डिफरेंट। एंड रिमेंबर, मेडिकल एविडेंस इज ऑलवेज सपोर्टिव इन नेचर, इट इज नेवर करॉबरेटिव। गलत कहा जाता है कि मेडिकल करॉबरेटिव है, वो नहीं होता करॉबरेटिव, वो सपोर्टिव एविडेंस होता है। तो आपने यू हैव टू बी क्लियर इन योर नोट्स कितने किस्मों का एविडेंस है और उस एविडेंस की सपोर्ट में कौन कौन से गवाह हैं जो सामने आए हैं। आपको जब मौका मिलता है, जब जजेस एविडेंस पढ़े होते हैं, तो आइडेंटिफाई पोर्शंस सामने लिखा होगा, आइडेंटिफाई पोर्शंस दैट डिस्क्रेडिट्स अ विटनेस, जिससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा हो, वो पोर्शन पढ़ा दें। पेज नंबर 136 लाइन नंबर 4 सर, सेकंड पैराग्राफ, मिडल ऑफ द पेज सर, राइट एट द बॉटम सर। वेरी स्विफ्टली उनकी पेंसिलें चलेंगी, आप उनको तरीके से फेवरेबल अपना एविडेंस पढ़ा दोगे। सारा एविडेंस पढ़ने की, लास्ट पेज, सजेशंस, फासले, रिश्तेदारियाँ, कुछ नहीं मिलना उससे। मिल सकता है अगर जज साहब कहें मेरे पास कोई काम नहीं बेटे, आराम से केस सुनाओ, वो है नहीं अब काम, चीज़ें बड़ी तेज़ हैं। तो आपको बदलते वक्त के साथ, क्योंकि मैंने अपने उस्तादों से सुना था कि एक वक्त था सुबह 9 बजे जजेस अपील शुरू करते थे, 1:30 बजे तक सुनते थे, इंटरम ऑर्डर्स भी पढ़ लें, फैसला भी पूरा पढ़े ट्रायल कोर्ट का। कौन पढ़ता है आज पूरा फैसला? चीज़ें बदल गई हैं। सो बदलते वक्त के साथ हमने भी अपने आप को एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है। मेडिकल एविडेंस को 500 ऐसा केस होगा, 500 जो मैंने मेडिकल एविडेंस के ऊपर बंदा एक्विट कराया हो। ऑकुलर मेडिकल कॉन्ट्रडिक्शन, जिंदगी मौत तकसीम होती है ऑकुलर मेडिकल के तजाद के ऊपर। यहाँ पर बड़े गौर से उसको आपने देखना है, मेडिकल एविडेंस को, अपनी एक्सपर्टीज़ लाएं उसके अंदर कि मेडिकल एविडेंस में, मैं ये नहीं कहता पूरे, मगर 25% डॉक्टर ज़रूर बने। समझें पोस्टमार्टम्स को, समझें MLCs को, समझें सीट ऑफ इंजरीज़ को, समझें डायमेंशंस को, समझें एंगल्स को, समझें कहाँ से फायर कहाँ गया, समझें कि पेनिट्रेटिंग वूंड्स कौन से हैं, इंसाइज्ड वूंड्स कौन से हैं, छर्रे का वूंड क्या है, क्लशनकॉफ का वूंड क्या होता है। क्लशनकॉफ का फायर लगा, एंट्री एग्जिट है ही नहीं, होता ही नहीं। क्लशनकॉफ तो गाय भैंस को भी चीर जाती है, दीवारों को भी चीर जाती है। वेलोसिटी ठीक हो, बुलेट 1 नंबर हो, समझने की बात है। कार्बीन क्या है या कार्बाइन क्या है, उसमें कितने छर्रे होते हैं। 8 mm क्या है, 9 mm क्या है, 222 क्या है, 223 क्या है, क्लशनकॉफ क्या है, ये कैलिबर्स क्या है, रिवॉल्वर क्या है, पिस्टल क्या है। फिर शार्प एज्ड वेपन्स जो हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनकी डायमेंशंस क्या हैं, उनकी इंजरीज क्या हैं।
अक्सर केसेस हमने ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि जी वजह अनाद बच्चों की लड़ाई है। आप मेडिकल देखते हो, प्राइवेट पार्ट्स टारगेट हुए में, आपके तो ये बच्चों की लड़ाई है ही नहीं। किलिंग अपना पैटर्न छोड़ती है मोटिव का, क्यों मारा, किस वेनम से मारा, किस गुस्से से मारा, कितनी दफ़ा मारा, ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये कुछ और ही सजेस्ट करती है। देखें मूवी विल स्मिथ की कंकशन, वो पोस्टमार्टम होता है, पोस्ट डेड बॉडी के माथे पे हाथ रख के कहता है टेल मी ऑल व्हाट हैपन टू यू, हु डिड व्हाट टू यू। डेड बॉडी बोलती है, डेड बॉडी बातें करती है डॉक्टर से, तब बातें करती है कि डॉक्टर साहब बात करना चाहें। स्वीपर से नहीं बोलती डेड बॉडी, यहाँ तो स्वीपर है। डॉक्टर खड़ा होगा, नाखून बोलते हैं, डिस्कलरेशन बोलती है, पैटर्न बोलता है, इतना कुछ बताता है, मगर वो बात दुरुस्त है। ना कभी कैमरा जाता है क्राइम सीन पर, ना कभी तफ्तीशी जाता है क्राइम सीन पर, ना डॉक्टर लाश के नज़दीक जाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो 161 का ही मोहताज बन के रहेगा ना, जैसे बना हुआ है, और रहना है जैसे, क्योंकि मुझे आगे उम्मीद भी कोई नहीं नज़र आ रही। So medical evidence की importance is enormous, it is huge. How to read trial court judgment? This is very important. कि आपकी दोबारा रिवीजन होती है, एक बड़ी क्विक रिवीजन होती है, एक ओवरऑल व्यू मिलता है प्रोसिक्यूशन केस का। आपको दोनों साइडों की बहसें मिलती हैं, कंप्लेनेंट की बहस मिलती है। और एक टिप है, अदालत में जाने से पहले आपको पता लग जाता है मुद्दई के वकील ने क्या आर्ग्यू करना है। ट्रायल कोर्ट में उसकी बहस लिखी होती है, पॉइंट्स उठा लो इसके, ये 6 पॉइंट्स हैं। कम ही होगा कि वो मक्खी पर मक्खी ना मारे और कोई नई बात करे। सो इन एडवांस यू हैव इन द फॉर्म ऑफ रिटन आर्ग्यूमेंट्स, आपको मुद्दई की बहस का पहले ही पता चल जाता है उसने ये कहना है। कोई पॉइंट आपसे निकल गया तो उसका जवाब रात को तैयार कर लो, इस पॉइंट का जवाब ये है। कोई आपसे पॉइंट छोड़ गया तो मुल्ज़िम के वकील ने ये बहस की, वो ये। मगर एक बात आपको ज़रूर मैं कहूँगा, मेरी हर अपील में कोशिश होती है और मैं कामयाब भी होता हूँ कि मैं कोई नई चीज़ ढूंढूँ जो नीचे किसी ने देखी ना हो या पकड़ी ना हो, और वो मिलती है। और मुझे अक्सर जजेस कह देते हैं कि ये कैसे हम रिसीव कर सकते हैं एविडेंस में, दिस इज़ अ न्यू, इस पॉइंट को देखा है पहले, तो मैं तरीके से कह देता हूँ सर मेरा काम तो बस आपको बताना था, आप इसको रद्द कर दें। ज़हन में बात रह जाती है, रिकॉर्ड में चाहे ना आए, आप अपना काम दिखा जाते हैं। सो मैनी ए टाइम्स ड्यू टू inexperience of the counsel or due to lack of hard work, बहुत सारे पॉइंट्स रह जाते हैं, लिए ही नहीं जाते। और ये तो आपने बात सुनी है, बड़ी मशहूर बात हुई हुई है कि सरकार और मुद्दई तो कम ही सज़ा करवाते हैं साइल को, मुल्ज़िम का वकील ख़ुद ज़्यादा पक्की सज़ा कराता है कि मैं तुम्हारा पक्का काम करूँगा, तुम बाहर नहीं होंगे, ऐसे सवाल पूछूँगा। तो आपको ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग मिलती है फैसले में कि ट्रायल कोर्ट ने रीजनिंग क्यों दी, किस एविडेंस से इम्प्रेस होके मोटिवेट होके सज़ा सुनाई गई है या कन्विक्शन दी गई है, सज़ा में अगर कमी है तो क्यों दी गई है, मिटिगेशन अगर है तो व्हाट आर द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, एंड टुवर्ड्स द एंड मेक योर नोट्स। जैसे कि मेरे पास हर परफॉर्मे में, वो परफॉर्मा दोबारा दिखा दे, राइट टुवर्ड्स द एंड ये लिखा होता है। एक और पेज है इसके बाद, नहीं, हमने इसके बाद एक पेज रखा होता है, मेडिकल एविडेंस, ऑकुलर अकाउंट, रिकवरीज, PFSA, मोटिव, बिलीव्ड नॉट बिलीव्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, विच पैराग्राफ डील्स विद इट। सो क्विक असिस्टेंस फॉर द जजेस वो ज़रूर उसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट जजमेंट के बाद मैं आता हूँ मिटिगेशन की तरफ। आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि मिटिगेशन क्या है। मिटिगेशन वो है जिससे आप वो जब मिटिगेशन की बात हो तो फिर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जुर्म तो आप ही ने किया,
अब बताओ सज़ा में कमी कैसे दे दें, कोई सर्कमस्टांसेस हैं। और मिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ बड़े तेज़ी से बदल रहे हैं। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल आपके लिए, जैसे 2017 का खोसा साहब ने क्या रीजनिंग दी, सिंगल शॉट है, रिकवरी रूल्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन है, और सम एक्ट ऑफ द डिसीज्ड कंट्रीब्यूटेड टू हिज डेथ, कि मरने वाले की कुछ गलती थी कि ऐसा वकूआ हुआ। एक केस मैंने पढ़ा, 2 साल का बच्चा था, उसके माँ बाप को बेदर्दी से दुश्मनों ने मार दिया। 2 साल का, दादी ने पाला, दादी ने लोरी नहीं दी रोज़ाना रात को। रोज़ाना रात को एक ही बात बताई, तेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, माँ बाप के कत्ल का बदला लेना, और तेरा कोई मकसद नहीं। तू अपने बाप का बेटा नहीं, और माँ अपना दूध नहीं बख्शेगी अगर तूने उसका कत्ल ना चुकाया। 342 में उसने कहा, मैं 20 साल रोज़ रात को ललबाए लोरी की बजाय ये सुनता था, मैं 18 का हुआ, मैंने मार दिया। जजेस ने कहा ये मिटिगेशन है, निकालनी आपने, ढूंढनी आपने, प्रेजेंट आपने करनी है कि कैसे करनी है। गुस्से से नहीं करनी, अग्रेसिव होके नहीं करनी, मेलो होके करनी है, आवाज़ धीमी करके करनी है, लेजा हल्का करके आपने मांगना है, क्योंकि मांग रहे हो। 100 रुपए का नोट दे, नहीं मिलना। एक बात और मेरे ज़हन में आई बड़ी, मुझसे अक्सर लोग किसी ने पूछा एक लेक्चर में, मैं कहता हूँ हम कोर्ट में जाते हैं, हम नज़र मारते हैं, हम हालात देखते हैं, हम फैसला करते हैं करना है नहीं करना। वो कहते हैं जी सर, नज़र मार के कैसे पता चल जाता है कि केस करना है नहीं करना, माहौल कैसा है, ये कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल पता चलता है। मैंने कहा इशारे पे जाके खड़े हो ना, मांगने वाला आता है, कभी बंदा है, कभी औरत है, कभी बच्चा है, कभी खुसरा है, एक नज़र मारता है और एक जुमला मारेगा। मेरी बेटी बैठी होगी तो मुझे कह देगा अल्लाह तुझे बेटा दे दे, मेरी कमज़ोरियों से खेलेगा। मेरी माँ बैठी होगी, अल्लाह तो इसको हज करा दे, देखता है और जुमला फेंकता है। तो मैंने कहा हम वकील हो के हम कोर्ट्स को रीड ना कर सकें। वो एक नज़र मारते हैं गाड़ी में और जुमला फेंकते हैं कि क्या कहेंगे तो देगा पैसे। I have 1 second to make a statement. So we with our experience, how can we not judge and gauge judges or predict कि is it a good day to argue or is it a good day to say जी सीनियर किसी दूसरी कोर्ट में ज़रा आज तारीख ही दे दें तो बेहतर है। तो ये आपने, आपकी नज़र है और आपका तजर्बा और वो एक्सपीरियंस से आएगा, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। सो मिटिगेशन क्या है? अंडरस्टैंड मिटिगेशन, मेक योर नोट्स ऑन मिटिगेशन, व्हाट अमाउंट्स टू मिटिगेशन, वो कॉन्सेप्ट्स, वो क्या उम्र का या बर्थ सर्टिफिकेट या वो क्या फैक्ट्स हैं, या आप अक्सर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जी इसमें मिटिगेशन नहीं है। जैसे कि बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बड़ी विजन है और बहुत हार्ड वर्किंग लॉयर भी थे और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी। सो मैं बड़े मज़े से कत्ल का केस 16-17 छुरियों के वार के, ये तो लाइफ हो जाएगी। उन्होंने मुझे पूरा लेक्चर दिया, उन्होंने कहा सच बोलना, फायरिंग की है ना कभी? मैं कहा जी सर वो हवाई फायरिंग तो 16 गोलियों के लिए, 16 छुरियों के वार के लिए नहीं। कम टू थिंक ऑफ इट, सो इट मेक्स सेंस। बुचर बनना मुश्किल है, गोली चल जाती है, वो ब्रस्ट निकल जाता है, पता ही नहीं चलता एक लगी कि 16 लग गई। तो दीज आर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के मिटिगेशन कैसे लेनी है, फ़ायदा आपने कैसे लेना है। थोड़ी सी बात को अब मैं आपका पूरा ध्यान ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, मुल्ज़िम से हटाने लगा। अब आप लोग मुल्ज़िम का केस आर्ग्यू नहीं कर रहे, अब आप मुदई का केस आर्ग्यू कर रहे हैं, अब आप अपील अगेंस्ट एक्विटल आर्ग्यू कर रहे हैं। सो चेंज योर रोल नाउ एंड फ्रेम ऑफ माइंड नाउ इफ यू पॉसिबली कैन।
सबसे पहली बात, सबसे एंड में आपकी बारी आएगी अगर आप अपील आर्ग्यू कर रहे हो। जी आप बताएं, फाइल आपके पास है, मुल्ज़िम की बहस सारी सुन ली है। सबसे पहली टिप तो ये कि आपको इजाज़त नहीं मिलनी कि आप अपनी तकरीर सुनाएं। आपसे सवाल होगा डायरेक्ट, इस पीस ऑफ एविडेंस को डील करें, इससे बाहर निकलें। तो फिर आप कहें जी इसका मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले आप मेरी तकरीर सुने। गलत। छूटते हाथ आपको कहा जाएगा ये जो रिकवरीज हैं ये इतने दिन के बाद क्यों गई, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन। मोटिव में आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया ज़मीन के तनाज़े का, FIR नहीं दी, आपने मोटिव एविडेंस 342 में पुट ही नहीं किया। व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। आप कहें सर उसका जवाब मैं दूंगा, सर पहले आ जाएं कि ये दिन का वकूआ है और मजलूम का बच्चा मार दिया। इमोशनल बातें बाद में करना, पहले लीगल करो। सो अक्सर देखा है कि कंप्लेनेंट काउंसिल शुरू ही इमोशन से होता है। इमोशन नहीं करना, इमोशन काम चला देता है मगर कुछ देर के बाद चलाता है। बाज़ केसेस में इमोशंस चलाने पड़ते हैं मगर आगाज़ में नहीं। आप वही बात है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बैंक से, आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देते हो। स्टार्ट विद लीगल आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एविडेंस जिससे कन्विक्शन सेफ होती है। डिफेंड द जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। किस पीस ऑफ एविडेंस को ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, किस पीस ऑफ एविडेंस को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। एक्टस रिया कैसे साबित करते हो, मोटिव कैसे साबित करते हो, रिकवरीज कैसे साबित करते हो, मेडिकल एविडेंस से क्या सपोर्ट लेते हो, कितनी ब्रूटैलिटी थी, क्या हार्म किया इसने, क्या नुकसान दिया इसने। सो कन्विक्शन पर भी काम कर रहे हो और साथ साथ जज को तरीके से ये भी बता रहे हो कि रिडक्शन ऑफ सेंटेंस, जज साहब सोचिएगा भी ना प्लीज़ कि इसकी आप सज़ा कम कर दें कहे बगैर, क्योंकि सीधी बात आओगे सेंटेंस पे तो जज कहेगा अच्छा फिर आप चाहते हैं हम सज़ा कम कर दें ना। तो यही तो छुपानी है गेंदें आपने कि फेंकनी कैसे है आपने उनको, कि आपने तरीके से मेरिट्स की पूरी बात करके एंड पे आपने जो है वो सेंटेंस की बात कि सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। रेपिटेशन नहीं करना, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट से शुरू करना है। आपको एज कंप्लेनेंट काउंसिल 3 से 4 से 5 मिनट से ऊपर नहीं मिलने। जजेस ने आपके कहने पर दोबारा फाइल नहीं खोलनी, आपको इजाज़त नहीं मिलनी कि आप भी बता दें। आपने 1-2 अच्छी बातें करके अपनी क्रेडिबिलिटी बना के आप कह सकते हो सर सिर्फ नक्शा मौका पेज 276 एग्जिबिट PJ पर आपकी तवज्जो लाना चाहूँगा। पेज 276 सर, काइंडली आई मे ड्रॉ योर ग्रेशियस अटेंशन टू दैट पेज, और आप उस पेज पर लाएं और अपनी बात समझाएं। जो जो वीकनेसेस पॉइंट आउट की जिस पे जज साहब ने, सो वो आपका मौका है कि आप मौके पर जो बातें आपके ख़िलाफ़ ज़्यादा जा रही हैं उनको ज़्यादा तफसील से आप मौके पर डील करेंगे। आपकी तकरीर धरी की धरी रह जाती है, 2-4 बातों को की गुफ्तगू आपकी इतनी होती है उसको इंसुलेट करके आपने बड़ा करना है कि जजेस इस पॉइंट पर फंसे हुए, मैंने यहाँ से बाहर निकालना। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अवॉइड इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स। ट्रायल कोर्ट की जजमेंट आपको बहुत सपोर्ट करेगी। सो कंप्लेनेंट का केस जिम्मेदारी होती है, आपके 2 ही फ़र्ज़ होते हैं, आप पे 2 ही जिम्मेदारियां होती हैं। एक आपने कन्विक्शन को इंटैक्ट रखना है और दूसरा आपने सज़ा कम नहीं होने देनी, या अगर जजेस सज़ा को कम कर भी देते हैं तो 50-50 का मैच हो जाता है, तो भी फेस सेविंग हो जाती है और आप अपने क्लाइंट के लिए रिज़ल्ट ले पाते हैं। क्योंकि डेथ सेंटेंस आजकल इन स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, पिछले दिनों बेटे ने बाप को बेदर्दी से मार दिया, जजेस ने काम नहीं करेंगे, हम सजाए मौत देंगे। तो वो पर केसेस कम हैं, दिन ब दिन इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, डेथ सेंटेंस कम होती जा रही है। डेथ सेंटेंस अनसेफ भी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। क्यों अनसेफ है मुझे लॉयर्स को बताना या कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा कुछ मैनेज होता है।
बड़े बेगुनाह लोग यहाँ जो हैं वो सज़ाए मौत चढ़ते हैं। अपील अगेंस्ट एक्विटल्स, जब ट्रायल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और आप कहते हैं मैं अपील अगेंस्ट एक्विटल लिखूंगा भी और ले जाऊंगा भी, तो पहला फैसला तो ये करना है, क्या सारों की हद तक कन्विक्शन को चैलेंज करना है या किसकी हद तक, किसी की हद तक, होली चैलेंज करना है या पार्शली करना है, इज इट अ पार्शल चैलेंजिंग और होल। मेरा ख्याल है काफ़ी सालों में एक ही बड़ा केस हुआ है जहां पर अपील अगेंस्ट एक्विटल एक्सेप्ट हुई है, वो खतीजा सिद्दीकी का केस था सुप्रीम कोर्ट से, और गाइडलाइंस भी दी सुप्रीम कोर्ट ने। उस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने का फैसला है, बड़ा जामे फैसला है, साथ में वो आप देखेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत नैरो है। तीन चीज़ों को मैंने क्रिमिनल लॉ में उनका स्कोप बड़ा नैरो पाया है। कैंसलेशन ऑफ बेल बड़ी नैरो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल बड़ी नैरो है, एडिशनल एविडेंस बहुत नैरो है। सो अपील अगेंस्ट एक्विटल्स में आपको पता हो कि लैंडमार्क केसेस कौन से। लैंडमार्क केस तो PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 11 ही है, गुलाम सिकंदर वर्सेस ममरेज खान, उसी के प्रिंसिपल्स हैं। ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस, नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस, परवर्स, आर्टिफिशियल, शॉकिंग डिसीजन, अगेंस्ट द डिसीजन, अगेंस्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस। प्रिंसिपल्स ही डिफरेंट हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल के, और बहुत कम, बहुत शाज़ो नाज़िर किसी एविडेंस को देखा ही ना गया हो या दुरुस्त तरीके से पढ़ा ना गया हो। दीज आर द प्रिंसिपल्स, और टेक्निकल होती है और डिफ़िकल्ट होती है आर्ग्यू करना अपील अगेंस्ट एक्विटल। Summing up is very important. This is your last interaction with the judge. After reading the FIR, after going through the evidence, he asks you to conclude your case and to मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी आप अच्छे और बड़े वकील देख लें पाकिस्तान में, उन सारों में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, और वो है केस प्रेजेंटेशन, एडवोकेसी और एटरी स्किल्स। कि आप चाहे अंग्रेज़ी बोलें, प्रेफरेबली यू मस्ट स्पीक एंड एड्रेस द कोर्ट एंड आर्ग्यू योर केस इन इंग्लिश, प्रेफरेबली। इम्प्रूव योर एक्सप्रेशन, या अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर लें या रट्टा मार लें। रट्टा भी चलता है, रट्टा उसका चलता है जो रीडिंग बहुत करता है। रट्टा मारने वाले स्टूडेंट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बजाय उसके जो अंडरस्टैंड करके काम करता है। मैट्रिक वाला ज़्यादा पढ़ेगा, O लेवल वाला ज़ेन अप्लाई करेगा, फ़र्क ये एक। एटलीस्ट मेरे दौर में ऐसे था, अब शायद मैट्रिक की सोच थोड़ी सी बदल गई। मैट्रिक FA BA उस्ताद सवाल पूछता था, हम पूरा छाप के कहते थे लब लो अपना जवाब मेरे जवाब दे अंदर, कितने लिखे होएगा, मिल जाएगा। OA लेवल वाला टू द पॉइंट बात करता है, आपने ये पूछा है, एक सफ़े का टू द पॉइंट ये जवाब है। सो व्हेन यू conclude your case and when you make your submission, summing up, that is a very important stage. उसकी आपकी तैयारी, आपके पॉइंट्स अलहदा लिखे होने चाहिए, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर केस, कि उसको आप क्लैरिटी के साथ, रिदम के साथ, मोमेंटम के साथ, फ्लो के साथ, परसुएजन के साथ, कन्विंस करते हुए, अच्छी टोन, अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाजों का चुनाव और इस्तेमाल करते हुए आप अपने केस को कंक्लूड करें। डीलिंग विद योर स्ट्रेंथ्स, हाईलाइटिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो डीलिंग विद द वीकनेसेस इफ देयर आर एनी इन द केस, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आखिरी स्लाइड भी आपके सामने आ गई है। आई डू अप्रिशिएट कि आपको today's lecture and today's discussion was of some use to you. May in the end, this portion may not go in the recording. I would like if some of you have any questions, I may
take those and address your concerns if you have any. I would like to end by expressing my gratitude to Team Kanundan for giving me this opportunity to yet again interact with the audience and whatever I am capable of कि मैं अपना experiences और views को आपके साथ share करूं. Thank you very much.